Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the third class on chapter 6 of Analysis of Financial Statements, Cash Flow Statements. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class we covered the operating activities format. Today I will discuss the 4 steps how to calculate the operating activities in cash flow statement. Then from tomorrow we will start the numericals of it. So step 1 is we determine the net profit before tax. So it is always calculated in the notes below the cash flow statement. So first we do the difference between the opening balance and closing balance of the statement of P&L account. Then we add back into it proposed dividend for the previous year. There are two types of proposed dividend. One is for the current year and one is for the previous year. So we are going to add back the proposed dividend for the previous year. The current year one is shown as a contingent liability under the notes and it is not taken into the cash flow statements. So next is interim dividend paid during the year. Then interim dividend is जो हम लोग dividend देते हैं in the mid of the year. नेक्स्ट इज ट्रांसफर्स टू रिजर्व्स, जो भी हम लोग ट्रांसफर्स करते हैं रिजर्व्स को, जैसे जर्नल रिजर्व्स में या फिर वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व्स जो होते हैं, ये सब जो रिजर्व्स होते हैं वो सब किस में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा. नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर. नेक्स्ट हम इसमें से लेस कर देंगे रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. जो भी रिफंड है टैक्स का, वो जो भी क्रेडिट हुआ था टू द P&L अकाउंट, वो हम इसमें वापस से लेस कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग एडजस्ट करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को. तो जो आइटम्स हम ऐड करते हैं वो होते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, amortization of fictitious or intangible assets. amortization of fictitious assets और intangible assets का मतलब होता है कि जो भी assets हमारे मीन्स जो भी हमारे intangible लाइक गुडविल होती है हमारी, जिसको हम टच नहीं कर सकते बट ये स्टिल हमारी बैलेंस शीट में शो होती है. तो इन assets को हम क्या कहते हैं, fictitious assets कहते हैं. तो अगर उनकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है या फिर रिटर्न ऑफ होती है तो उसको हम लोग वापस से एड बैक करते हैं. Next is expenses written off, discount on issue of debentures written off, trademark and patents right written off. ये सब किसके अंदर आता है, हमारा expenses written off के अंदर, सॉरी amortization of fixed assets और intangible assets के अंदर आता है. goodwill written off, preliminary expenses written off. preliminary expenses कौन से होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम लोग अपनी फर्म स्टार्ट करने से पहले करते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. देन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट्स राइट रिटन ऑफ. देन हम क्या ऐड करते हैं, बैड डेट्स रिटन ऑफ. देन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. देन क्रिएशन ऑफ प्रोविजंस, लाइक हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स बनाया है या फिर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बनाया है. नेक्स्ट आइटम जो हम डिडक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स. यहाँ पे हम लोग एड बैक क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को. रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड एंड रीट्रांसफर ऑफ एक्सेसिव प्रोविजंस. ये चीजें जो आप क्वेश्चंस में करोगे तो आपको और बेटर क्लियर होंगी. So the third step is adjustment in respect of changes in current asset and current liabilities. Means after calculating the operating profit we need to adjust our working capital changes. So we need to add back decrease in assets,
and increase in current liabilities. And we need to less increase in current assets and decrease in current liabilities. This is because कि जब हमारा डिक्रीज इन करंट असेट होता है एंड इंक्रीज इन करंट असेट होता है तो उस केस में हमारे कैश पर क्या डिफरेंस आता है कि वो इंक्रीज हो जाता है. सो जो कैश इंक्रीज होता है ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग कोई भी असेट को बेचते हैं या फिर कोई भी नई करंट लायबिलिटी को खरीदते हैं तो उन दोनों केस में हमारा कैश कैसा होता है, बढ़ जाता है. क्योंकि हम करंट लायबिलिटी बेच देते हैं तो हमारा कैश कैसा होता है, करंट असेट बेच देते तो क्या होता है, हमारा जो कैश होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. एंड जब हम लोग कोई लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं, सपोज हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारा कैश पोजीशन कैसा होता है, बढ़ जाता है. तो हम उसको ऐड बैक करेंगे टू द इनकम. देन इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को हम लेस क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा कैश कैसा होता है, कम हो जाता है. जब हमारी करंट असेट बढ़ती है, सपोज हम लोग इन्वेंट्री खरीद लेते हैं तो हमारी कैश पोजीशन कैसी होती है, कम हो जाती है. या फिर अगर हम कोई भी लायबिलिटी पे ऑफ कर देते हैं, जैसे सपोज हमने बैंक लोन पे कर दिया तो हमारी कैश पोजीशन कैसी होगी, कम हो जाएगी. सो हम उसको लेस कर देंगे फ्रॉम द नेट इनकम. So now the fourth step is we deduct the income tax paid. Then we will drive to net cash from operating activities or net cash used in operating activities. So it is all for today. From tomorrow we are going to start the numericals of operating activities. Please like and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.